Jai Hind everyone, this is going to be our polity crash course. We are going to do all the topics one by one and we are going to cover everything in detail. This is exclusively for the prelims examination of UPSC. You can also use it for other state PCS examinations as well as the mains examination, because you will get a lot of insights regarding and a lot of perspective regarding the overall evolution of India's constitutional framework. Along with that, the themes will be covered in a great detail. So let us start. We are going to firstly start with the historical background. We divide our historical background into three parts, as you know. First will be the company rule, which was from 1773 to 1858. Second will be what? The crown rule. When you know the revolt of 1857 will happen, crown rule. This will be from 1858. The act will come by British government and there will be a lot of legislations because of the after the post 1857 first war of independence, which V.R. Savarkar calls it. Then we will have the other important legislations, like there were certain acts regarding the education, there were certain acts passed by the British government regarding administration. All those we will also study. So let us start with the historical background firstly. Britishers came to India in 1600 as traders. We all know this fact. In the form of East India Company, Queen Elizabeth I gave the charter. Queen Elizabeth I gave the charter, and the company had obtained Diwani to trade with. Firstly we have to keep two battles in mind. One is 1756, which will be the Battle of Plassey, 56-57, and second will be the 1764, which will be the Battle of Buxar. So after the Battle of Buxar, will involve the Bengal region, wherein the company will get the Diwani, that is pure trading rights over Bengal, Bihar and Odisha. Further, we will see the evolution and we'll see all the things. So firstly, let us start with the very first act, which came in 1773. 1773 was the initiation of the constitutional reforms by the British government. So for the first time, political and administrative functions, keep these two words in mind, political and administrative functions of British government for the first time were recognized by East India Company. Alright. Of the East India Company were for the first time recognized by the British government. For the first time, political and administrative functions of the East India Company were recognized by the British government. Alright, so functions were recognized. It laid the foundation of what? Central administration in India. There are certain features of this act you must know. Firstly, it makes the governors of Bombay and Madras presidency subordinate to the Governor General of Bengal. पहले तीनों इंडिपेंडेंट थी, पर बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में फोर्ट विलियम, फोर्ट जॉर्ज और फोर्ट सेंट जॉर्ज. अब इसमें क्या हुआ? फोर्ट विलियम का था, बंगाल में था, तो जो बंगाल की गवर्नर था उसको क्या कर दिया? उसको एलिवेट कर दिया और बाकी दोनों को सबऑर्डिनेट कर दिया. ठीक है. It designated the governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him. ठीक है. पहला ये करा. दूसरा, executive council 4 members plus Governor General of Bengal बन गया अपना Governor of Bengal. ठीक है. पहला कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स.
तीसरा क्या किया, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया कैलकटा में, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया कैलकटा में, ठीक है, 1774. It comprised one chief justice and 3 other judges. Then it also prohibited, this act also prohibited the servants of the East India Company from engaging in any private trade or accepting bribes from the natives. रॉबर्ट क्लाइव के एक्ट देख लिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो ब्राइबरी जो कि कॉमन प्रैक्टिस थी उसको बंद करवाया इस एक्ट के थ्रू. मतलब बंद क्या करवाया, एक लेजिस्लेशन था सिंपली. इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो रिपोर्ट करेंगे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की, वो जरूरी हो गया था, ठीक है. सो रिकग्निशन किसको मिला, रिकग्निशन मिला पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल और मिलिट्री फंक्शंस को, कंपनी के सिविल मिलिट्री फंक्शंस ऑफ द कंपनीज को रिकग्निशन मिला. ये सब हो गया अपने इस एक्ट में 1773 के एक्ट में. और 1773 के एक्ट में अपन ने देखा कि हाँ ये किसके परव्यू में आया था अपना 1764 में, जैसा कि अपन ने देखा बैटल ऑफ बक्सर हो गई थी जिसमें शाह आलम II हार गए थे, तो उनको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करना पड़ा शाह आलम II को, जो कि काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग था. उसके बाद कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए 1765 में. तो उसके बाद 1773 में ये पहला लेजिस्लेशन आया. अब हम दूसरे लेजिस्लेशन की ओर बढ़ते हैं. ओके, अब हम दूसरे राइट की ओर बढ़ते हैं, दूसरे एक्ट की ओर बढ़ते हैं. ये होगा 1781 का अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. अब इसमें क्या था कि जो कुछ डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, उसको रेक्टिफाई करा और ये अमेंडमेंट एक्ट एज एन एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. See, it exempted the Governor General and Council from jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in official capacity. मतलब जो गवर्नर जनरल है और काउंसिल है, वो जो भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट्स करेंगे उसको आप सुप्रीम कोर्ट में डिबेट नहीं कर सकते, ठीक है. और दूसरी चीज़, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. दूसरी चीज़ क्या हुई, जो अपना सुप्रीम कोर्ट था वो जुरिस्डिक्शन उसका होगा इन ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकटा एंड इट रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स. मतलब जैसे हिंदू के लिए जो हिंदू कोड होता है अपना, अभी हिंदू कोड बिल है, जो हिंदू लॉ उस टाइम पे था वो एडमिनिस्टर किया जाएगा, और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ एडमिनिस्टर किया जाएगा, है ना. तो ये पर्सनल लॉस की बात कर ली कि कोर्ट ऐसा करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हुआ. तीसरी चीज़ क्या हुई कि रेवेन्यू मैटर्स जो कि थे, क्योंकि सर एलिजा MP बहुत अग्रेसिव भी थे, जो सबसे पहले जस्टिस बने थे इस एक्ट के तहत. इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 4 अदर जजेस थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, है ना, 1+3. इट वॉज 1+3. सो फर्स्ट वन वॉज एलिजा MP. तो ये जो चीज़ हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रेवेन्यू मैटर्स और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का जुरिस्डिक्शन नहीं रखता है. तो रेवेन्यू मैटर्स को हम सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखेंगे. क्या रखेंगे? बाहर रखेंगे रेवेन्यू मैटर्स को, ऐसे एडमिनिस्टर करेगा. और इन लोगों को भी, गवर्नर जनरल काउंसिल को भी जुरिस्डिक्शन से बाहर रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के. सुप्रीम कोर्ट विल नॉट, यू कैन से, yes, Supreme Court will not try to put them behind bars if they do something in their official capacity which violates the overall general law of the land. That will not happen. So ये 2 चीज़ें हो गई. अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपील्स जो थी प्रोविंशियल कोर्ट की, वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल लेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा. मतलब जैसे अभी जो हाई कोर्ट के केसेस है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं इफ समवन हैज़ टू अपील फर्दर, बट उस टाइम पे जो प्रोविंशियल कोर्ट्स के केसेस थे वो कौन लेगा? गवर्नर जनरल एंड काउंसिल लेगा, ठीक है, ये लेगा. ऑल राइट. और इनफैक्ट जो प्रोविंशियल कोर्ट्स के लेजिस्लेशंस भी होंगे वो भी गवर्नर जनरल का काउंसिल फ्रेम करेगा, ठीक है. तो ये सारे थे अपने जो डिफेक्ट्स जो इस एक्ट के तहत रह गए थे, उनको करेक्ट करने के बाद इसको कहा जाता था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. अब अपन देखते हैं, इसको छोड़िए, अब अपन देखते हैं आगे पिट्स इंडिया एक्ट
आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब अपन देखते हैं आगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सी पिट्स इंडिया एक्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अगर आप टाइमलाइन को देखेंगे तो 1776 में ब्रिटेन हैज़ लॉस्ट द अमेरिकन कॉलोनी। ऑलराइट, सो पिट्स इंडिया एक्ट में a lot of things will come through which the Britishers will try to enhance their revenue from what? From the other colonies like India. So सबसे पहले तो एक चीज़ होगी कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है कंपनी के वो सेपरेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव, इन दो फंक्शंस को सेपरेट कर दिया जाएगा। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कंपनीज कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, ठीक है। तो इसको कमर्शियल भी कह सकते हैं आप। एंड इट अलाउड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल फंक्शंस एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव और यू कैन से द कमर्शियल फंक्शंस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, it empowered the board of control to supervise and direct all the operations of civil and military government और revenues of British possessions in India, ठीक है। तो इसको empower कर दिया कि जो भी operations हो गए of civil and military government, civil plus military government, वो ये देखेंगे, ठीक है। The act was significant for two reasons. First, the company's territories in India for the first time were called British possessions of India, ठीक है। जो कंपनी की टेरिटरी थी, जो कंपनी की टेरिटरीज थी, टेरिटरीज, उन्हें क्या कहा, ब्रिटिश पोजेशंस कहा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कब कहा, जब अमेरिकन कॉलोनी को हार गए थे, अमेरिकन कॉलोनी को हार गए थे। कौन हार गए थे अमेरिकन कॉलोनी को? ब्रिटिश हार गए थे। और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। तो ब्रिटिश पोजेशंस कहा कंपनी की टेरिटरी को पहली बार। उसके बाद एक और चीज़ होगी पहली बार, वो होगी 1758 में, वील सी दैट। Alright, the act was significant for two reasons. First, the company's territories in India were called British possessions, and second, the British government was given the supreme control over the company's affairs and its administration in India. ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कंट्रोल एक्सरसाइज करने लग गई कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑलराइट यार, दिस आई वाज थिंकिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम कि shall I keep erasing it because I do not have many pages. I'll have to do what? I'll cover these pages and then I'll come back and erase, and then I'll cover, then erase. So either I keep erasing or I come back later and erase. I'll exercise the second option. Now we will see 1786 का एक्ट, ठीक है। वी हैव सीन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट वाज आल्सो आफ्टर पिट्स हु वाज प्राइम मिनिस्टर, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर, यस। सो वी विल सी 1786 का एक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। क्या बनाना चाहते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाना चाहते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पर कॉर्नवालिस बनना नहीं चाहते थे तो उनने दो डिमांड्स रखी। सबसे पहले, ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केसेस। पहला उनको चाहिए था पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल, पावर्स टू ओवरराइड द काउंसिल डिसीजंस। उन्हें बोल दिया स्पेशल केसेस में, ठीक है। मतलब ही वांटेड अ बिट ऑफ मोनोपोली फॉर हिमसेल्फ इन द काउंसिल, है ना। Council was what? Oligopoly. But what did he want? He wanted monopoly for himself in the council. Alright, now we will see second thing he wanted. He also wanted to be commander in chief. Alright, second thing he wanted to be the commander in chief. Good. These two things he wanted, these two things he got. That is why we have this act of 1786. Now I am erasing. Alright, act of 1786. I hope it is clear. Now we will have Charter Act of 17 Charter Acts कितने थे? Charter Act 1, 2, 3, Charter Act 1773, Charter Act 1833 and Charter Act 1853. तो पहला कौन सा चार्टर एक्ट है? चार्टर एक्ट ऑफ 1793, है ना। यही बोला था ना शायद मैं, 1793, 1833, 1853, 1793, 1833 और 1853। 1793 क्या कहेगा? ओवरराइडिंग पावर्स एक्सटेंड हो गई लॉर्ड कॉर्नवालिस को एंड ऑल हिज फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। ऑलराइट, परमानेंट सेटलमेंट की बात करेगा ये, परमानेंट सेटलमेंट जो कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करा था।
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को काफ़ी पावर्स मिलेंगी, वो तो सबॉर्डिनेट ही रह गए थे बॉम्बे और मद्रास के, है ना, फोर्ट जॉर्ज और फोर्ट सेंट जॉर्ज. इट एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. तो ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड हो गई. ट्रेड मोनोपोली 1773 में देखा था, अब 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो गई. हाँ 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हुई थी, राइट. तो एक चीज़ मैंने गलत लिख दी यहाँ पे मैं, हाँ ठीक है, 13 और 53, अभी इसके बाद 53 भी आएगा, 4 थे, राइट. आई वॉज ऑल्सो गेटिंग कन्फ्यूज हियर. सो इट वॉज 1813, इट इज़ 1833. वी विल डू 1853 देन. 1853 है ना. 20 years plus 20, then this act, plus 20, then this act, and then what, plus 20, this act. This is going to happen. It provided the commander in chief was not to be member of governor general's council unless was so appointed. Commander in chief was not to be a member of governor general's council unless so appointed. यहाँ पे commander in chief बने थे वो, he will not be a member of governor general's council until he is so appointed. And it also laid down the members of the board of control and their staffs were henceforth paid out of Indian revenue. मतलब जो members of board of control थे और उनके staff थे वो कौन पे करेगा, भारत की जनता ही पे करेगी. उसके बाद ही लेके आएंगे दादा भाई नारोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. तो Indian revenues extracted. Indian revenues for their own revenue expenditure extracted. ठीक है, ये चीज़ें थी. परमानेंट सेटलमेंट की इसमें बात करेंगे. कौन कॉर्नवालिस. 1813 में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया. द इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट्स. ठीक है, मोनोपोली खत्म हो गई पर कंप्लीटली खत्म नहीं हुई थी. ठीक है, 3 चीज़ों पे मोनोपोली बरकरार थी, चीन, चाइना और तीसरा आपको पता ही है ओपियम, राइट. चरस ये 3 चीज़ें. तो ट्रेड मोनोपोली तो ख़त्म हो गई पर एक्सेप्ट 3. ठीक है, एक्सेप्ट 3 द ट्रेड मोनोपोली ended over other items. Is this very unneat? I will try to do something so that this becomes neat. Let us do this neatly. Okay, don't worry, I will provide you with very neat and clean notes. Yes. What are we talking? We are talking about 1813. Alright, trade monopoly. Trade was thrown open to in all the commodities except 2 things, tea and China and opium. ठीक है, except tea and China, other were thrown open. ठीक है, मोनोपोली खत्म हुई पर कंटिन्यू का क्या कर रहे हैं, हाँ ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यू कर रहे हैं. तो किसी किसी चीज़ की कंटिन्यू होगी, तभी मैंने 20 + 20 + 20 लिखा था. अभी देखना, और वो टाइमलाइन फॉलो हो रही है. इट इज़ ईजी टू रिमेंबर. इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया. समझ में आ गया. ब्रिटिश सॉवरेनिटी सबसे पहले कब असर्टन की उनने पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले ब्रिटिश सॉवरेनिटी को असर्टन किया जब उन्हें डिवाइड कर लिया था कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर संभालते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर संभालते थे. तो भाई सॉवरेनिटी की बात की. ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी. It allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people. Alright, so Christian missionaries started coming after 1813 Act. It provided for the spread of Western education among the British inhabitants. ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए what came? Can you tell me? What came in 1813 by the Britishers for Western education in India?
rupees 1 lakh grant was given to improve literature and then scientific knowledge. And 1835 में क्या होगा, 1835 में मैकॉले मिनट्स होगा और 1854 में अपन देखेंगे वुड्स डिस्पैच आएगा. मैकॉले मिनट्स 1835 और 1854 वुड्स डिस्पैच. ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू हैपन. 1813 इज डन. अच्छा, एक और चीज, लोकल गवर्नमेंट्स को बोल दिया कि तुम टैक्सेस लगा सकते हो लोगों पे और उन्हें पनिश भी कर सकते हो अगर वो टैक्सेस पे नहीं करें तो. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स को ऐसा कह दिया. तो क्या क्या करा, ट्रेड इन टी और चाइना की मोनोपोली कंटिन्यूड थी, इसमें ओपन हो गया ट्रेड, इसमें स्टिल रिजर्व्ड था ट्रेड. फिर सॉवरेनिटी ऑफ द क्राउन ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी की हमने बात की. उसके बाद किसकी बात की, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए 1 लाख की ग्रांट दे दी और लोकल गवर्नमेंट्स को कहा कि तुम टैक्सेस लगा सकते हो, पर हाँ अगर लोग टैक्सेस नहीं दे तो थोड़े थोड़े प्यूनेटिव मेजर्स भी ले सकते हो. ये चीज़ थी. ये जो 1835 की बात है, मैकॉले मिनट्स, दिस इज रिलेटेड टू 1835 आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज रिलेटेड टू एजुकेशन. एंड 54 में भी वुड्स डिस्पैच एज यू नो इज रिलेटेड टू एजुकेशन. पर कुछ और चीज़ें भी हुई थी, जैसे मैकॉले कमेटी 1833 में बनी थी. ठीक है, 1833 हम करेंगे. अगेन आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड, है ना. 55 हैव रिटन हियर, वील डू हियर 1833. तो 1833 में मैकॉले कमेटी बनी थी जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स भी रेकमेंड करे थे. इट इज़ 1833. नाउ वी विल सी 1833. सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया. अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले कौन बने, विलियम बेंटिक. उनके पास ही सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी जो कि ट्रांसफर हो गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, पहले कौन थे, बेंटिक. The act created for the first time government of India having authority over entire territorial India possessed by the British in India. Lord William Bentinck, as you know, was the first Governor General of India. You have to remember this fact. This is very important. ठीक है, what does it mean? अब Governor General of India, as you can see from Bengal, what is it? Is it decentralization? This would have been decentralization, but this is not happening. This is happening. So the first step to decentralization. First step to decentralization. Very good. This is happening in 1833. Also, it deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. Governor General of India was given what? Exclusive legislative powers for the entire British India. Laws made under previous acts were called legislations, while laws under this act were called acts. तो पहले क्या थे, रेगुलेशंस बना रहे हो तुम, है ना, लेजिस्लेशंस कर रहे हो. अब क्या कर रहे हो तुम, असल में एक्ट बना रहे हो. वाक्यता उसकी मजबूत कर दी गई. और दूसरी चीज़ क्या हुई कि एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी ख़त्म हो गई. प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी. और जो ब्रिटिश पोजेशंस थे वो किसके हाथ में चले गए, क्राउन के हाथ में चले गए. ये हम देख रहे हैं लगातार, तीसरी बार हो गया ये. ठीक है, चार्टर एक्ट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, सॉरी नहीं, एग्जेम्प्ट इसने नहीं किया था ना, एक सेकंड. ये जो था ना, ये वाला 33 में, जैसा कि हमने बात की थी, इधर मैकॉले कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी. इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्वेंट्स. और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी. इसने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे. ठीक है, ये हो गया अपना 1833 का एक्ट.
मतलब जो सिविल सर्वेंट्स होंगे वो वैसे तो कोई भी ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, पर इस पोजीशन को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया था, जो कि कमर्शियल बॉडी थी, पर फिर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अभी आप देखेंगे कि 1853 का एक्ट अपन पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें अपन नोटिस करेंगे कि सिविल सर्विसेज में काफ़ी चेंजेस आए, जैसे कि अपना ये जो ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स होता है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एक्ट ओनली. So number 1, it introduced what? Open competition system for recruitment and for selection of civil servants. Macaulay Committee was not appointed in 1833, it was appointed in 1853. Alright, keep this in mind. Yes, Macaulay Committee was appointed in 1853, but the talks regarding appointment of Macaulay Committee were initiated in 1833. Because there were certain disagreements, as I told you, a court of directors did not like the proposal कि सारे civil servants इंडिया से भी हो सकते हैं और सारी जो दे शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी पोजीशन एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, ये चीज़ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आई। पर फिर इसको सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन बना दिया गया और मैकॉले कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1854 और उसकी ये रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर दिया गया। ठीक है, ओपन कंपटीशन का मतलब क्या होता है? एग्जाम होगा, सबके लिए ओपन होगा। यू विल सी दैट सत्येंद्र नाथ टैगोर will become the first civil servant. Alright, it separated for the first time the legislative and executive functions of Governor General's Council. ठीक है, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था, सुप्रीम काउंसिल, उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। पहले कमर्शियल और पॉलिटिकल को करा था, और कहाँ पे करा था कमर्शियल और पॉलिटिकल को? कंपनी के फंक्शंस को सेपरेट किया था। अब काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया और 6 नए मेंबर्स को अपॉइंट किया गया एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। तो ये चेंज इंपॉर्टेंट था। अब तीसरी चीज क्या करेंगे? इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन पोजेशंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो जब भी पार्लियामेंट चाहेगा वो कंपनी के रूल को टर्मिनेट कर सकता है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन द टेरिटरीज जिनके लिए उनने वॉर्स लड़ी, और अभी अपन मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे जो किंग्स थे उनके मैटर्स में इंटरफियर भी करा, पर ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। Number 4, it introduced for the first time local representation of Indians in Central Legislative Council. This is very important. Six है ना, 6 members. Were appointed. Out of them, 4 went to the local provincial governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. Local representation. ये जो सिविल सर्विसेज का कॉलेज था, ये कौन सा कॉलेज था? हेलब्यूरीज कॉलेज। तो ये पहली बार इनने अलाउ कर दिया था। उसके बाद यू विल सी द people coming in the council, वो बाद में होगा ये। this is for the first time that they have allowed the local representation of Indian. 1 second, give me 1 second. Yes, what was I saying? This allowed for the first time local representation in the Indian legislative council. हाँ, तो जो 6 मेंबर्स को इंक्लूड किया था उनमें से 4 ये अपॉइंट करेंगे, बॉम्बे, बंगाल, आगरा और मद्रास। 4 ये अपॉइंट करेंगे और बाकी 2 विल बी रेकमेंडेड। दिस विल हैपन।
So this you have to remember कि first time local representation of Indian in the Indian Central Legislative Council was introduced. And it opened the civil services. We'll revise this. See, Macaulay Committee was there on civil services. It opened the coordinated Indian civil service. Then Governor General's Council was divided into two parts, the Legislative Council and Executive Council. Then East India Company की जो टेरिटरीज थी वो ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन वो होल्ड कर सकते थे. और आखिरी चीज़, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स को बढ़ाया गया था, उनकी जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज किया गया था. लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया गया था. लोकल रिप्रेजेंटेशन इज द टर्म. ठीक है. और वो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल और आगरा के हाथ में थी. वो ही अपॉइंट कर सकते थे. मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, दिस यू विल रिमेंबर. एंड वन एक्स्ट्रा इज आगरा. आगरा यू कैन गेट कंफ्यूज, सो ऑलवेज रिमेंबर आगरा. ऑल राइट. I hope this is clear. 1853. Now we will move ahead and we will study the crown rule, because 1853 has happened. Then 1857 first war of independence will happen, the mutiny will happen, all the revolts will happen, and who will be approached? Just give me a second, I will close the door. Who will be approached? Bahadur Shah Zafar will be approached. And then in 1858 the company will try to assert its rights over Indian territory. So British Queen will make an announcement in 1858 after the Sepoy Mutiny, and this will be called the Act of Good Governance. So let us study this Act of Good Governance. It abolished the East India Company. It did what? It abolished the East India Company, okay, and transferred the powers of the government, territories and revenues to the British Crown. सबसे पहली चीज़ क्या हुई? East India Company abolished. First चीज़, East India Company abolished. Rights, revenues, everything, territories, everything transferred to British Crown. Everything ट्रांसफर टू क्राउन. ठीक है, ऐसा हो गया. फिर कैसा हुआ? फिर देखते कैसा हुआ. फिर हुआ कि जो डबल गवर्नमेंट थी ना, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? पिट्स इंडिया एक्ट ने. डबल गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था? क्या कहता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैंडल करेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल. देखो, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बाद में भी आएगा, जब अपन पढ़ेंगे 1919 का मॉन्टेग्यू शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. और दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शंस करेगा. इसको अबॉलिश कर दिया. तो इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, दिस वॉज अबॉलिश्ड. दिस विल डू लेटर. ठीक है. तीसरी चीज क्या करी? इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया वॉज टू बी गवर्नड बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी. ऑलराइट, इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी. She will be the supreme ruler. It changed the designation of Governor General of India to that of Viceroy of India. This is very important change. हमने देखा बेंटिक को चेंज किया था 1850. ये तो मिटा दिया ना मैंने सब कुछ. हाँ, 1833 में लॉर्ड बेंटिक बन गए थे क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. क्या कब हुआ था ये? 1833 में हुआ था. अब 1858 में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको क्या बना दिया गया? वाइसरॉय. उनको क्या बना दिया गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन. क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन था? वाइसरॉय. ठीक है, वापस अनक्लियर हो गया. विल मेक इट वेरी क्लियर. यू विल मेक ब्यूटिफुल नोट्स आउट ऑफ इट. क्या था? हम क्या कह रहे थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया? हाँ, इसको इधर लेके जाना था, एरो को. एक सेकेंड. वाइसरॉय. आगे देखते हैं.
अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी, 15 मेंबर काउंसिल, यू हैव टू रिमेंबर। इट इस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल। वो काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को असिस्ट करता था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का ऑफिस भी इसे एक्ट ने क्रिएट करा था। एक नया ऑफिस क्रिएट हुआ जो कि था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस, उसमें एक 15 मेंबर काउंसिल था। यू विल रिमेंबर दिस, आई होप यू टू रिमेंबर। इतना सा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसरॉय के साथ ही जुड़ता है, तो वाइसरॉय आया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साथ साथ में आ गया। कैसे आ गया? साथ साथ में आ गया। एंड वेस्टेड इट विद द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। Yes, Secretary of State had to be the member of the British cabinet. Alright, 15-member council was established to assist the Secretary of State, and the council was an administrative body. And this council का chairman कौन था? Of course, the chairman will be the Secretary of State only. Okay, it constituted Secretary of State as body corporates capable of being sued in India and suing. Alright, all this. Sue मतलब legal proceeding जब आप किसी के तहत इंस्टीट्यूट करो। तो जो ये पूरा एक्ट था, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ठीक है, इनने ये चीज़ें अबॉलिश की, इनने हर मैजेस्टी का रूल कंटिन्यू करवाया थ्रू अ फॉर्मल मीन्स, और 15 मेंबर काउंसिल हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यस। एवरीथिंग वेंट टू द क्राउन। नाउ वी विल डू इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। लेट अस डू हियर। 13 याद है आपको? 13 में क्या करा था? ये सब किया था ना, लोकल गवर्नमेंट्स, वेस्टर्न एजुकेशन, क्रिश्चियन मिशनरीज। फिर मैंने मैकॉले मिनट्स बताया था 35, 1854 का वुड्स डिस्पैच बताया था। फिर 1833 में बेंटिक गवर्नर जनरल बने थे। 53 में क्या हुआ था? 53 में अपन ने देखा लोकल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुई थी। और क्या हुआ था 53 में और भी बहुत कुछ हुआ था, जैसे कि अपना फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस वर सेपरेटेड ऑफ द कंपनी। यू रिमेंबर ना, 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स वर अपॉइंटेड टू द काउंसिल। बिल्कुल। और सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन हुआ था। और क्या हुआ था? और ब्रिटिशर्स ने कहा था ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन दे कैन रिटेन द पर्टिकुलर व्हाट डू यू से टेरिटरीज। अब अपन देखेंगे 1861 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अपन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखा था। अब अपन इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 देख रहे हैं। सो इंडियंस का कॉपरेशन नेसेसरी था ब्रिटिशर्स की गवर्नेंस के लिए, तो इसने इंडियंस के कॉपरेशन पे ही एम्फसाइज किया। सबसे पहली चीज क्या थी? रिप्रेजेंटेटिव हुए हमारे इंस्टीट्यूशंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस, नहीं सॉरी, उनके इंस्टीट्यूशंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस हुए। लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लॉर्ड कैनिंग वाज व्हाट? द वाइसरॉय, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन तीनों को नॉमिनेट किया। ठीक है, it is, I think, because of the thickness of the pen my writing is not correct. Maharaja of Patiala. It is also because of this cursor. Sir Dinkar Rao. ओके, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस कब हुआ था? जब मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। ऐसा कब हो रहा था? ऑफ कोर्स ऐसा तब हुआ था जब 1833 का टाइम था। अब डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया।
legislative powers were restored to the Bombay and Madras presidencies. बाद में अपन देखेंगे कि जब 1937 में पूरी ऑटोनॉमी दे दी जाएगी प्रोविंसेस को। नए लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश हुए बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब में। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, है ना। कहाँ कहाँ पे? पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और बंगाल में। एक चीज़ और हुई कि भाई फॉर द बिजनेस ऑफ द काउंसिल टू रन स्मूथली द वाइसरॉय वॉज given a job like to basically make the business more convenient. Yes, it gave recognition to the portfolio system. Yes, what were we doing? ये चल रहा है अपना 1861 का एक्ट। सॉरी, आई वाज राइटिंग समथिंग। वाइसरॉय कौन था अपना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ताकि चीज़ों को स्मूथली रन कर सके, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, ताकि सब कुछ फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल इन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट आर डन अवे विथ स्मूथली। और वाइसरॉय एक और चीज़ कर सकता था, ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता था। Yes, without the concurrence, मतलब without the interference or without any agreement with the legislative council, the viceroy could issue ordinances. अभी ordinances का कौन सा आर्टिकल है? 123 और गवर्नर के लिए 213, ठीक है। तो वाइसरॉय उस टाइम पे ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता था। और लाइफ कितनी थी? 6 months। करंटली लाइफ कितनी है? करंटली लाइफ कितनी है ऑर्डिनेंस की? 6 weeks। तो पहले थी वही लाइफ 6 months। Just a second, I have to complete this thing, है ना। Just give me a minute. Ordinance, not a second, minute. Yes, I am back. So we have done what? We have done the Act of 1861. इंडियंस का कॉपरेशन था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को स्टैब्लिश कर दिया गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, पंजाब में, बंगाल में, कैनिंग का पोर्टफोलियो सिस्टम और ऑर्डिनेंसेस की अपन ने बात कर ली। ब्यूटिफुल। ऑलराइट, दिस ऑल इज डन। ओके, नाउ वी विल डू what comes after 61? Tell me. What comes after 61? 92 है ना, 1892 एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 वी आर गोइंग टू स्टडी। दोहराओ मन में क्या पढ़ने वाले हैं हम? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 की सबसे पहली बात थी कि इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। तो मतलब जो नॉन ऑफिशियल एडिशनल मेंबर्स थे उसको इंक्रीज कर दिया। किस में? अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एडिशनल मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। उसके बाद क्या करा? अभी अपन ने पहले पढ़ा था ना कि वो जो काउंसिल्स थे वो अपन सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे ही इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग व्हाट? द बजट, डिस्कसिंग बजट, बजट 92, डिस्कसिंग बजट, डिस्कसिंग बजट, ठीक है जी। और क्या करा? नॉमिनेशन हुआ कुछ लोगों का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बाय वाइसरॉय। ये सब चीज़ें हुई।
तो ये जो था ना, ये पूरा जो एक्ट था, इसने इलेक्शन का वर्ड यूज नहीं करा था. इलेक्शन वर्ड इज नॉट यूज्ड. नॉमिनेशन, रिकमेंडेशन टू सर्टन बॉडीज, ये वर्ड यूज हुआ था. ये एक इंपॉर्टेंट रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे. ठीक है, अपन ने ये देख लिया, ये बेसिक सा एक्ट है ना. मेंबर्स हुए, डिस्कशन हुआ बजट का, और हाँ कि लोग मतलब नॉमिनेट हो सकते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फ्रॉम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय वाइस रॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स. और उसके अलावा हाँ, गवर्नर भी नॉमिनेट कर सकता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स. तो इलेक्शन का वर्ड यूज नहीं हुआ इस पूरे एक्ट में. नॉमिनेशन, रिकमेंडेशन, इन चीज़ों का वर्ड यूज हुआ, मतलब ये सारे वर्ड्स यूज हुए. ठीक है, 92 आपको समझ में आता है. अब अपन समझते हैं 1909, मतलब अब अपन आ गए इंडियन काउंसिल्स एक्ट. हाँ, 1892 अपन ने कर लिया, 1861 अपन ने कर लिया. अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. ऑलराइट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मिंटो का रिफॉर्म है. मिंटो प्लस मॉर्ले. मॉर्ले क्या था? मॉर्ले क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एसओएस. एसओएस के पास 15 लोग थे साथ में, याद है आपको. और वाइस रॉय कौन था अपना? वाइस रॉय था मिंटो. ठीक है जी. साइज बढ़ गई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, सेंटर में भी प्रोविंसेस में भी. सेंट्रल प्लस प्रोविंशियल, साइज बढ़ गई. ठीक है, 16 से 60 हो गए. क्या 16 से 60 हो गए नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कोई यूनिफॉर्म मेंबर्स थे नहीं. तो ये अपन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल काउंसिल की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट हो गया. आपको पहला पॉइंट समझ में आता है. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल, साइज बढ़ गई और यू कैन से इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई. अब अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट. दूसरे पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. It provided for the first time the association of Indians with the executive councils of the viceroy and the governors. So who was the first Indian who became the who was the first Indian to join the viceroy's executive council and was appointed as a law member? कौन था वो पहला इंडियन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. खूबसूरत है ना. तीसरी चीज देखते हैं अब अपन. इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑन बोथ लेवल्स. ठीक है, मतलब रेजोल्यूशंस पास करो बजट पे, डिस्कशंस करो, क्वेश्चंस पूछो, ये सब करो. ठीक है, तो डेलिबरेटिव फंक्शंस इंक्रीज हुए. डेलिबरेटिव फंक्शंस इंक्रीज हुए. चौथी चीज क्या हुई जी? सिस्टम ऑफ कम्युनल. एक सेकेंड, हम ने कितनी चीजें देखी? हाँ, ये अपन ने इतनी चीजें देखी अभी. अब अपन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में, जो कि इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे एक्ट का. कम्युनल इलेक्टोरेट का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि उनने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट होना चाहिए इंडिया में और मुस्लिम्स को मिलने चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स. ठीक है, तो कम्युनल इलेक्टोरेट का एंगल है इस एक्ट में. बाद में एक वो आएंगे अपने जो बोलेंगे कि कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर देंगे बेसिकली रैमसे मैकडोनाल्ड. फिर फिफ्थ पॉइंट क्या देखेंगे अपन कि इट प्रोवाइडेड फॉर सम सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल फ्रॉम BCCC, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, BCC, अदर कॉर्पोरेशंस एंड यूनिवर्सिटीज़. तो ये सारी चीज़ें हुई अपनी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में. फिर अब अपन देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. क्या क्या हुआ? सबसे पहली चीज़ हुई कि साइज बढ़ गया 60x60, यू रिमेंबर. दूसरी चीज़ क्या हुई? देखो 60x60 पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या हुई? डेलिबरेटिव फंक्शंस. डेलिबरेटिव फंक्शंस बढ़ा दिए गए. तीसरी बजट डिस्कस करो. तीसरी चीज़ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बन गए? फर्स्ट लॉ मेंबर, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सब कुछ चला गया. फिफ्थ में क्या हुआ? कम्युनल इलेक्टोरेट. और छठी चीज़ क्या हुई भी? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस और जमींदार्स की बढ़ गई.
ठीक है, दिस इज देयर. नाउ वी विल सी व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. Government of India Act 1919. Is this very beautiful? I will make it more beautiful, don't worry. Government of India Act 1919. Okay. Yes, British government wanted to introduce what? Responsible government in India. So Montagu Chelmsford reforms were introduced in this context. And I think, okay, we will relate it to modern history also, but let us firstly understand the basic agenda behind this. Number one, it relaxed the central control over provinces by demarcating the separate central and provincial subjects. ठीक है, मतलब सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया. रिस्पेक्टिव लिस्ट पे ही प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेशन लॉ बना सकते थे. स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी दो. ठीक है, तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिमार्केट कर दिया गया. दूसरी चीज़ क्या हुई? इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड. ट्रांसफर्ड कौन एडमिनिस्टर करेगा? गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. और रिजर्व्ड कौन लेजिस्लेट करेगा? गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. मतलब प्रोविंशियल बेसिकली वो जो रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी ट्रांसफर्ड जो रिस्पॉन्सिबल है वो एडमिनिस्टर करेंगे, और रिजर्व कौन एडमिनिस्टर करेंगे? जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इसको डायरकी कहते हैं, डबल रूल. ठीक है, तो दो तरीके के हो गए थे अपने डबल रूल, डायरकी. उसको भी कुछ लोग डायरकी कहते हैं, COM और BOC वाले को. ट्रांसफर्ड रिस्पॉन्सिबल वाले और रिजर्व्ड जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो वाले. ठीक है. इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म. and direct elections in the country. Thus, Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislation consisting of Upper House Council of State and Lower House Legislative Assembly. And majority of members to these two houses were chosen by direct election. डायरेक्ट इलेक्शन था जी, डायरेक्ट इलेक्शन. ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप. कोई अगर आपको बोल दे इनडायरेक्ट इलेक्शन था तो ये गलत है. कोई स्टेटमेंट बोले इनडायरेक्ट इलेक्शन था तो ये गलत है, मतलब वो स्टेटमेंट गलत है. ये डायरेक्ट इलेक्शन था, यही बात सही है. कैसा इलेक्शन था बाईकैमरलिज्म में? डायरेक्ट. अच्छा, जो 6 मेंबर्स थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनमें से 3 को इंडियन होना था. 3 को इंडियन होना जरूरी है मतलब अब से. और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये 6 को इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उस पर बहुत बर्डन था. SOS वॉज बर्डनड. तो एक नया ऑफिस क्रिएट करा उसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए, और उस ऑफिस का नाम क्या था? हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंडन. Burden got eased out and it took some of the, you can say, functions of the Secretary of State. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स. इट वॉज सेटअप व्हेन इन 1926. तो यहाँ पे अपन इधर लिख देते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन. ऑल राइट. इट सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट्स ऑल्सो. तो बजट्स को भी सेपरेट कर दिया. सेंट्रल प्रोविंशियल में सेपरेशन हो रहा है तो ये बजट का भी सेपरेशन होगा. प्लस लिख दो यहाँ पे बजट. It provided for the appointment of a statutory commission to inquire into the report on its working after 10 years of coming into force. और वो कौन था? साइमन कमीशन. Modern history perspective has come. What is this?
This you have understood. The subjects got transferred, hierarchy got introduced, bicameralism, direct election, High Commissioner of India, London, budget separate, Central Public Service Commission. Now we are understanding what after this, after 10 years it was said कि a commission to check the working of the report है ना was appointed to inquire after the working after 10 to inquire into the working after 10 years, and it was Simon Commission. नाइनटीन 27 में इसको अपॉइंट कर दिया गया था और 2 years पहले अपॉइंट कर दिया गया था और उसके बाद 2 साल बाद अराउंड 1930 में नवंबर में अपॉइंट किया गया था. मान लो 2 साल 2 महीने बाद 1930 में इसने रिपोर्ट दी. क्या रिपोर्ट दी? इसने बोला कि द कमीशन, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की इसने कि द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी एक्सटेंडेड टू द provinces and a federation of British India should be established along with the princely state और diarchy should be abolished. 3-4 चीज़ों की बात की. उसके अलावा एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वॉज प्रिपेयर्ड. उसके बाद 1932 में अपन देखेंगे रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड निकाला, कम्युनल अवार्ड. उसके बाद क्या होगा? पूना पैक्ट होगा जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व्ड सीट्स. यस, गांधी अंबेडकर पूना पैक्ट will happen. All this will happen. Now we are going to cover the Government of India Act 1935 in our next lecture.